بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کو ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے لیکچر میں کہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن سے مراد کیا ہے کہ ایک مدرسے کے اندر، ایک ادارے کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ان سرگرمیوں کو ایسے طریقے سے مضبوط کرنا ہے، اس کو ایسے طریقے سے آپ نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے جس سے مقصد کے لیے اس ادارے کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ادارے کو چلانا ہے، تو اس ادارے کو آپ نے کیسے رن کرنا ہے، کیسے اس ادارے کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمام ایکٹیویٹیز جتنی بھی اس ادارے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان تمام کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے اور اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنے مقصد کو تک پہنچنا ہوتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس ادارے کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے پلان بھی کر رہے ہوتے ہیں، انالائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ان کو ڈائریکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو آج ہم اس کے اسکوپ کو ڈسکس کریں گے. اسکوپ آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے ایک تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سی چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، کون سی چیزیں اس میں جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں، کون سی چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کون سی چیزوں کو جو ہے وہ انالائز کرنا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے ہم آج ڈسکس کریں گے. ٹھیک، تو اس میں اسکوپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں مینجمنٹ کے ایک ایکسپرٹ گزرے ہیں جن کا نام ہے ہینری فیورڈ. ہینری فیورڈ کے اکارڈنگ کیا ہے کہ جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہے وہ از دی پروسیس آف پلاننگ، انالائزنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ اینڈ کوآرڈینیٹنگ. ہینری فیورڈ کے اکارڈنگ کیا ہے کہ جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہے از دی پروسیس آف پلاننگ، directing, coordinating and controlling. ہینری فیورڈ کہتا ہے کہ جو پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ ایک ادارے کے اندر ہیں تو یہ آپ نے جو بھی اس ادارے سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ نے پلان کرنا ہے، ریلائز کرنا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو آپ کا اسٹاف ہے ان کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے تاکہ وہ کہ آپ کے مقاصد تک پہنچ سکے، اور پھر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک ادارہ ہوتا ہے، ادارے کے اندر زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ میں جا کے ان تمام ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ ہینری فیورڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہے. ہم اس کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان میں ہم کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہر ایک اسٹیپ کے اندر دیکھتے ہیں. فرسٹ ون آ جاتا ہے پلاننگ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عقلی یا شعوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر یا پھر ڈاکومنٹ کے اندر بھی آپ نے اس کو ریٹن شیپ میں بھی لے کے آتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ خیال آتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک منصوبہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے. آپ نے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے جو ہے آپ کے ذہن میں آتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عقلی یا شعوری جو ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے، حقائق اور اصولوں کی بنیاد پر انجام دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک عقلی یا شعوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو حقائق اور اصولوں کو مد نظر رکھ کر انجام دی جاتی ہے. کہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھ رہا ہے، آپ نے جو ہے مختلف یا ڈفرینٹ پرنسپل جو ہوتے ہیں، رولس اینڈ ریگولیشن جو ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے، ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے اس ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ تک پہنچا رہا ہے. اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ مختلف کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو مختلف انڈیویجولس کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کا جو آپ کے پاس
ساتھ جو مختلف جو کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ سب کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو بیسیکلی جو ہے پلاننگ کے اندر دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے، آپ نے ایک منصوبہ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پلاننگ کے اندر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ اسٹیپ تھا کہ آرگنائزنگ، کہ آپ نے جو مختلف ایکٹیویٹیز کو آپ نے پلان کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے پلاننگ کے اندر ایک ادارے کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہونی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے پلان کر لیا. ٹھیک، تو پھر آپ نے اس کو ایک آرگنائز شکل میں لے کے آنا ہوتا ہے. کہ آپ نے جو ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں، جو آپ نے لائحہ عمل بنایا ہے کہ آپ نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے پلاننگ کے اندر کر لیا ہے کہ آپ نے اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کرنا ہے، آپ کے جو گولز ہیں وہ گولز تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے ایک لائحہ عمل یا ایک پلان ترتیب دیا ہے. ٹھیک ہے، اس پلان کے ان ایکٹیویٹیز کو جو آپ نے پلان کے اندر ترتیب دی ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آرگنائز کرنا ہوتا ہے. کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو آپ نے کیسے استعمال میں لانا ہے، ان کو آپ نے کیسے آرگنائز کرنا ہے تاکہ آپ کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اویلیبل ریسورسز کو آپ نے آرگنائز وے میں رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو مقاصد حاصل ہو جائے. آپ نے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اویلیبل ریسورسز کو آرگنائز وے میں یوز کرنا ہے. ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مقاصد کو، آپ نے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اویلیبل ریسورسز کو آرگنائز وے میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ آرگنائز وے میں ریسورسز کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، آپ نے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے آرگنائزنگ کے بعد ڈائریکٹنگ. کہ آپ نے پلان کیا، آرگنائز کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈائریکشن کی طرف یا ڈائریکٹنگ کی طرف آنا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اسٹیج ہوتی ہے یہ ڈیسیجن میکنگ اسٹیج ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز کو پلان کیا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے ریسورسز کو آرگنائز وے میں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی اویلیبل اسٹاف ہوتا ہے، آپ کے پاس جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ان افراد کو یا ان انڈیویجولس کو یا ہیومنس کو آپ نے جو ہے ڈائریکشن دینی ہے، آپ نے ان کو مخاطب کرنا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے، آپ نے ان کو معلومات دینی ہے کہ آپ نے اس مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چیز پلان کی ہوئی ہے، اس چیز کو پلان کرنے کے بعد آپ نے اپنے ریسورسز کو بھی آرگنائز کر دیا ہے. ٹھیک، تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس جو کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ادارے کے اندر جو افراد موجود ہیں ان افراد کو آپ نے جو ہے موٹیویشن دینا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکشن اسٹیج ایک تو آپ ڈیسیجن میکنگ اسٹیج اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آپ نے ذہن بنا لیا، آپ نے ڈیسیجن کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اس کام کو جو ہے فلاں بندے نے یا فلاں اسٹاف نے اس کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے یا اس کو اس نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک، تو پھر آپ نے اس اسٹاف کو جو ہے ایک کو موٹیویشن دینی ہے اور آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے کہ آپ نے اس کام کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈائریکٹنگ کے بعد آ جاتا ہے کوآرڈینیٹنگ، کہ آپ نے ڈائریکٹنگ کوآرڈینیٹنگ کہ آپ نے مختلف
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जो है प्लान किया है, उनको अवेलेबल रिसोर्सेज को आपने आइडेंटिफाइज किया है, फिर आपने अपने स्टाफ को या आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको आपने डायरेक्शन दिया, उनको आपने मोटिवेट किया। उसके बाद क्या है कि आप एक इदारे के अंदर, अगर आप तालीमी इदारे की बात करते हैं तो तालीमी इदारे के अंदर जो है मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है उसका इंतजाम दी जा रही होती हैं या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि जब तक आप मुख्तलिफ कामों को जो है आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जब तक जो है एक इदारे के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते हैं या वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आपने मकसद को अच्छी तरह से हासिल करने के लिए, आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है एक इदारे के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उनके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, उनके दरमियान जो है आपस में इत्तेहाद का होना ज़रूरी है, ताउन का होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी जब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ मरबूत नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, तो तब तक जो है वो अपने मंजिल तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस लेवल में जो है वो कोऑर्डिनेशन फराहम की जाती है, ठीक है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो कोऑर्डिनेशन फराहम की जाती है। और लास्ट वाला आ जाता है कंट्रोलिंग। लास्ट वन में आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में या कंट्रोलिंग के आने में आपने क्या देखना होता है कि जो काम आपने तरतीब दिए हैं या जो काम आपने करने थे या जो काम हो रहे हैं, क्या वो काम जो है वो बताए हुए उसूलों के मुताबिक या बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, प्रिंसिपल्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है। आपने देखना होता है कि जो चीज़ें आपने प्लान की थी उनको ऑर्गेनाइज किया था, उनके लिए आपने जो है डायरेक्शन दी थी, उन सारी चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट किया था। फिर लास्ट में जाकर आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए, और इसको इवैल्यूएशन की स्टेप भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जाके आप उस सारे प्रोसेस का जायज़ा ले रहे होते हैं, सारी चीज़ को देख रहे होते हैं, क्या ये सारे काम जो है वो जो हमने एक प्रोसीजर तरतीब दिया था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, जो हमने नया अमल तरतीब दिया था या जो हमने स्ट्रेटजी इख्तियार की थी, क्या वो उसी के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। यानी लास्ट में जाके कंट्रोलिंग इसमें भी ज़रूरी होती है कि आपने जो तरीक़ाकार अपनाया है या आपने जो तरीक़ाकार डिज़ाइन किया था या जो आपने चीज़ें प्लान की थी, उनको ऑर्गेनाइज किया था, डायरेक्शन दी थी, उसके बाद उनको आपस में कोऑर्डिनेट किया था, क्या वो उन्हीं के मुताबिक चल रही है नहीं हो रही है, ठीक है। जब तक कंट्रोलिंग नहीं होगी तो वो प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट जो है रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हर एक के नज़दीक जो है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसी चीज़ को जो है वो मज़ीद जो है वो और यूनिट में जो है इसको जो है डिटेल में बयान किया है या इसको मज़ीद तफसील में बयान किया है, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हमने प्लानिंग, एडवाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग को डिस्कस किया है। तो इसी को जो है गुड लीग ने जो है वो मज़ीद डिटेल में इसको जो है वो बयान किया है। और एक ने जो है इसको मज़ीद डिटेल में बयान किया है। तो उन्होंने जो है इसको एक शॉर्ट फार्मूले के तहत बयान किया है या एक उस चीज़ को एक फार्मूले का नाम दिया है। तो उन्होंने जितने भी स्टेप बयान किए हैं उसको जो है उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको एक फार्मूले के तहत उन सबको इकट्ठा किया है। तो वो जो फार्मूला बन रहा है वो है पोस्ट फॉर्म, ठीक है। POSDCORP, P stand for planning, O stand for analyzing, S stand for staffing, D stand for directing, CO stand for controlling, R stand for reporting and B stand for budgeting। उनके नज़दीक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर प्लानिंग, एनालाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग का होना ज़रूरी है।
ठीक है। यानी कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस करनी है, प्लानिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, स्टाफिंग को भी हम डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट हो क्या है कि आपके पास जो है प्लानिंग आ जाती है, ठीक है। यानी प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो प्लान करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो आपने करनी होती है उसके लिए जो है आप एक क्या है आप तरतीब देते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप एक एक्टिविटी होती है, ये जो आप कह सकते हैं कि ज़हनी एक्टिविटी होती है, जो आपने जो माइंड को जो है वो जो है एक्टिव करना होता है, इसका इस्तेमाल करना होता है, इसको आपने जो है वो इस्तेमाल करा के आपने अपने मंजिल खोलने के लिए आपने मुख्तलिफ तरीकों के बारे में गौर करना होता है और आपने एक्टिविटीज़ को जो है वो प्लान करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या डिस्कस की थी कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज को आपने मकासद को हासिल करने के लिए जो चीज़ें प्लान की हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज को आपने जो है वो ऑर्गेनाइज भी करना है, ठीक है। ये जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको तरतीब से नहीं करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल होगी, कब इस्तेमाल होगी, तो तब तक आप अपने मंजिल तक भी नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टॉकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टॉकिंग, ठीक है। स्टाफिंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं, उसी को हम देख लेते हैं। स्टाफिंग में क्या होता है कि जो चीज़ें आपने प्लान की हैं उन चीज़ों के लिए आपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज को जो है वो ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। फिर यह है कि आपके मकसद को हासिल करने के लिए जो है आपको कुछ स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है। आपको जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी आपका मंजिल जो है या आपके जो मकासद है वो खुद हासिल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपने मकासद को हासिल करने के लिए जो है वो राइट पर्सन का इंतखाब करना होता है, उनकी सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। कि आपने जो है वो राइट पर्सन का कि मकसद को कौन सा बंदा हासिल कर सकता है, ठीक है। जिसके लिए आपने जो है राइट सिलेक्शन करनी होती है, राइट पर्सन का आपने जो है इंतखाब करना होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक तो आपने सिलेक्शन किया, दूसरा साथ साथ आप क्या करते हैं उनके लिए डायरेक्शन देते हैं, उनको जो है उनकी तरबियत करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने मकसद को कैसे हासिल करना है, ठीक है। स्टाफिंग हो गया। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमने स्टाफिंग के अंदर देख लिया कि आपने जो है आपके पास जो अवेलेबल स्टाफ है या आपने जो स्टाफ है जो है इंजेक्ट किया है या आपके पास जो स्टाफ है नया आया है इन मकासद को हासिल करने के लिए आपने जो हायर किया है, तो उस स्टाफ को जो है वो आपने डायरेक्शन देनी होती है, उनको आपने मंजिल तक पहुँचने के लिए आपने उनको जो है तरबियत देना होती है, उनको आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डायरेक्टिंग स्टेज आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपने उनको बताना होता है कि आपने अपने मकसद को कैसे हासिल करना है, उनको दूसरे लफ्ज़ में आपने मोटिवेशन भी देनी होती है, ठीक है, ताकि वो आपके जो मंजिल है या जो मकासद है मकासद तक वो पहुँच सके, ठीक है। तो मतलूबा मकासद तक पहुँचने के लिए जो है उनकी तरबियत की जाती है, उनकी जो है वो मोटिवेशन की जाती है। तो उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग, तो ये कोऑर्डिनेटिंग स्टेज जो होती है इसमें क्या होता है कि आपके पास जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास जो मकासद को हासिल करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज थे उसके साथ साथ आपने अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज को हाइड किया है या आपके पास जो मौजूद थे उसको आपने जो है वो ट्रेन किया है, उनको मोटिवेट किया है, उन सब का आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी जब तक वो सारी एक्टिविटीज़ जो है जितने भी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देने वाले लोग होते हैं या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जब तक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, आपस में मजबूत नहीं होगी या उनका आपस में रब्त नहीं होगा, तो आपके जो मकासद हैं वो ऑर्गेनाइज करके आपके पास नहीं आ सकते हैं या आप उनका अच्छी तरह से नहीं पहुँच सकते हैं या वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं, ठीक। किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी जब तक वो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो चीज़ जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होगी। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग का जो है वो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है रिपोर्टिंग,
یہ رپورٹنگ جو ہے وہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے. تو اس میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے اندر رپورٹنگ سے مراد یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کام کو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس کام کی جو پروگرس ہوتی ہے اس کے جو ڈے ٹو ڈے جو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو اس کے بارے میں جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں انتظامیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا منتظمین ہوتے ہیں ان تک جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنا کام کر لیا ہے یا ہم جو ہے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں یا جو ہے ہم اپنے مقاصد کے جو ہے اس کو اتنے % ہم نے حاصل کر لیا ہے ٹھیک ہے. تو یہ رپورٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو اسٹاف وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا جو ریسورسز ہیومن ریسورسز وہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ان کا جو باس ہوتے ہیں یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے آگاہ کرنا ہوتا ہے وہ ان کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کمونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے مقاصد کے اس لیول تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. اور لاسٹ میں جو ہے وہ اسٹیج آ جاتی ہے بجٹنگ. بجٹنگ اسٹیج کون سی ہوتی ہے؟ بجٹنگ اسٹیج میں ہے کہ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے ایک فائنینشیل پلان ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے پلان بنائے ہوتے ہیں یا آپ نے فائنینشیل پلان رہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کام کے لیے آپ کو جو ہے اتنا فائنینس درکار ہے وہ فائنینس کہاں سے آئے گا اس کے سورسز کیا ہوگی ٹھیک ہے اس فائنینس کو آپ نے کیسے خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اس کا ریکارڈ کیسے کرنا ہے اس کی ریکارڈ کیپنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بجٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے کب اسٹارٹ ہو رہا ہے کب ختم ہوگا ٹھیک ہے. تو یہ سارا اس سے ریلیٹڈ فائنانس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر کتنا فائنانس درکار ہے اور کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ہے کتنے خرچات ہوں گے آپ کے جو وہاں پہ اسٹاف موجود ہے ان کی سیلریز کتنی ہوگی اس کے علاوہ جو باقی آپ نے ریسورسز اکوائر کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کتنا پیسہ درکار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ بجٹنگ کے اندر اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے اندر ٹھیک. تو یہ جو ہے اور یہ نزدیک جو ہے وہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ ہے اس کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن ایسوسیشن آف اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے بھی اس کے کچھ اسٹیپس کیا ہے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے اندر کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپس میں آپ کو ملتی جلتی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی ضروری ہیں ٹھیک ہے. تو ابھی پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ہینری فیلڈ کے نزدیک اس نے اس کو 4 اسٹیپس میں بیان کیا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے گولڈ کے نزدیک دیکھا تو اس نے ان چیزوں کو ڈیٹیل میں دیے گئے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب ہم امریکن اسکول آف ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں اور وہ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. American Association of School Administration. ٹھیک ہے. امریکن ایسوسیشن آف اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے نزدیک جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہے وہ کون کون سے اسٹیپس پہ ہوتی ہے؟ پلاننگ ہے, آرگنائزنگ ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, اسٹیمولیٹنگ ہے. پلاننگ, آرگنائزنگ ہے ٹھیک ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, اسٹیمولیٹنگ ہے. اس کے بعد اسٹیمولیٹنگ ہے. دین کوآرڈینیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن اینڈ لاسٹ ون جو ہے وہ ایوالویٹنگ ہے.
evaluating, ठीक, planning, analyzing, decision making, stimulating, coordinating, communication, and evaluating. Evaluating of the this is the process of planning, analyzing, decision making, stimulating, coordinating, communicating, and evaluating, ठीक है। तो हमने जो है प्लानिंग को देख लिया, एनालाइजिंग को देख लिया, डिसीजन मेकिंग को भी आपने देख लिया, ठीक है। यानी डिसीजन मेकिंग से मुराद जो हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं, कौन से स्टेज के ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, डायरेक्टिंग के ऊपर आपने इस चीज़ को देखा है। डायरेक्टिंग जो स्टेज होती है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, आपने डिसीजन बनाना होता है कि से जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आपने इस्तेमाल कराने हैं, कौन से बंदे निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेटिंग आ जाता है, ठीक, ये आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग से मुराद क्या है कि एक जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है कि उसके साथ काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं कि वो चाहता है कि वो लोग जो है उसके साथ जो है वो एक अच्छी फ़ज़ा में काम करें, पुरफ़ज़ा जो है पुरफ़ज़ा माहौल में काम करें, जो लर्निंग एनवायरनमेंट काम करें, ठीक है, पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर काम करें, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, उनको पीसफुल एनवायरनमेंट देता है, उनको एक अच्छा माहौल देता है, ठीक है, उनको जो है एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो साथ ही साथ जो है वो लोगों को जो है वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से मोटिवेट कर रहा होता है, ठीक है, उनके साथ आपस में मिलजुल के रह रहा है, ठीक है, उनको मकासद को हासिल करने के लिए उनको बता रहा होता है कि आपकी कामयाबी है, ठीक है, यानी उनको ये बताना मकसद होता है कि ये जो है मकसद है, ये आपका मकसद है, इसको हासिल करना जो है आपकी ही कामयाबी है, ठीक है। तो स्टाफ जो है स्टाफ के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक तारीफ पैदा होती है, एक मोटिवेशन पैदा होती है। तो जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इस चीज़ को लाजमी देता होता है, ठीक है, क्योंकि वो जब तक स्टिमुलेट नहीं करेगा स्टाफ को आप अपने मकासद को अच्छी तरह से पहुँच नहीं सकेगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग को हमने पहले डिस्कस किया कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को आपने आपस में कोऑर्डिनेट करना है, आपने इस सारे प्रोसेस को जो है वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया है। कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन को देखें तो ये इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हो सकते हैं, आप वर्ड हो सकती है, डाउन वर्ड हो सकती है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो हॉरिज़ॉन्टल हो सकती है, ठीक है। कि एक इदारे के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन या आपने जो आपके पास मालूमात है या जो काम किया जा रहा है उसको जो है वो आप मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर या मुख्तलिफ जो जिन लोगों को आप जो है वो रिपोर्ट करते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें आती हैं कि आपने किसको कम्युनिकेट करना है, आपका इमीडिएट पास होना है, तो उस तरह आपने वो चीज़ें पहुँचानी होती हैं, वो कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाती है एवलुएटिंग, ठीक है। और मीटिंग के अंदर आपने ये देखना होता है कि आपने ये सारा जो प्रोसेस प्लान किया, एनालाइज किया है, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं, जिस चीज़ को स्टाफ को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, आप रिपोर्टिंग को भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मीटिंग के अंदर आपने ये देखना होता है कि आपने जो चीज़ें प्लान की थी, क्या आपने जो काम प्लान किया था उसी के मुताबिक वो चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है, या उसके अंदर कुछ खामियाँ आई हैं या उसके अंदर आपको कमज़ोरियाँ देखने में मिल रही हैं, तो वो कमज़ोरियाँ कौन सी हैं, क्यों पैदा हुई हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ में ये एवलुएटिंग जो होती है ये आपके लिए एक आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग स्टेज यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। एक तो पहले है कि आपने डिसीजन बनाना है कि ये काम किसने करना है, और यहाँ पे आप डिसीजन ये बनाते हैं, डिसीजन ये करते हैं कि आपने जो काम तरतीब दिया था, जो काम आपने एक्टिविटीज़ करनी थी, क्या वो 100% सही हुई है या कितने % सही हुई है, नहीं सही हुई है तो वो कौन सी वजूहात थी, ठीक है। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पे ये बनाते हैं कि अगर आप सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लानिंग करनी है, जैसे आपने तरतीब दी हुई थी उन चीज़ों उसी के मुताबिक हुई है, आपके रिसोर्सेज से ज़्यादा यूज़ नहीं हुए तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर वो चीज़ें उसके आपके बनाए हुए उसूलों, आपके बताए हुए रास्तों, आपके बताए हुए डायरेक्शन, आपके बताए हुए जो आपने चीज़ें फिक्स की हुई थी, इसके लिए फाइनेंस वगैरह फिक्स किया हुआ था, उस सारी चीज़ों से हट के हो रही हैं, तो फिर आपके लिए सोचने का मकाम होता है। आप सोचते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई है, हमने प्लानिंग में गलती की है या किसी और स्टेज पे गलती कर रहे हैं, या हम जो है वो स्टाफिंग में गलती कर रहे हैं, या हम डिसीजन मेकिंग में गलती कर रहे थे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का दोबारा से जायजा ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी है कि एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उसको जो है वो आप किस तरह से फायर खतरे तक पहुँचाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर आपने एक्टिविटीज़ हैं उसको आपने कैसे प्लान करना है, एनालाइज करना है,
ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, और मोटिवेट कैसे करना है, आपने स्टाफ को स्टिमुलेट कैसे करना है। अभी हम देखेंगे कि इदारे के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। अगर हम इसका जायजा लेते हैं तो इदारे के अंदर जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, ठीक। एक तो आप कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सबसे पहले किस चीज़ को देख रहा होता है, वो इदारे के अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, यानी फर्स्ट वन चीज़ कौन सी देख रहा होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा होता है, ठीक। उसके बाद जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। देन इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, इसके अलावा भी है अगर ज़्यादा जो यूज़ होती है वो ये एक्टिविटीज़ होती हैं या इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इदारे का, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक। जैसे कि इदारे के अंदर जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसमें कौन कौन से काम सारे एग्जाम देने होते हैं, या उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है करनी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर लिखी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। एक इदारे के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो आम रोज़मर्रा के काम हो रहे होते हैं इदारे के अंदर उनकी देखभाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है, ठीक। रोज़मर्रा के कामों के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो स्कूल बिल्डिंग आ जाती है। स्कूल बिल्डिंग का सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसकी लुक आफ्टर उसको देखना, ठीक है। उसके बारे में सारी चीज़ें जो है उसके क्लासरूम को देखना, ठीक है। फिर हर एक क्लासरूम के अंदर जो फर्नीचर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जो लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, यानी जितने भी आपकी जनरल चीज़ें स्कूल के अंदर हो सकती हैं, हॉस्टल है, उस चीज़ें से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए बात, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जो स्टाफ होता है, ठीक है, तो स्टाफ की जो आप जो है सिलेक्शन कह सकते हैं या उसको जो हायर करने का प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो एजुकेशन से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं आती हैं वो सब की सब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही होती हैं, ठीक है। यानी एजुकेशन से रिलेटेड बाकी तो आपको कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाएगी, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आपके ज़हन में जो है जनरल टाइप जो चीज़ें होती हैं वो सब के सब जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशनल एक्टिविटीज़। एक इदारे के अंदर जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होता है या जो वहाँ का सरबराह होता है, जो या आप कह सकते हैं कि या वहाँ का जो मैनेजर होता है, उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को जो है वो प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके लिए जो है वो सारा प्रोसेस करना जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए आती है, ठीक। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि उस इदारे के अंदर उसने अपने तालीमी अमल को एजुकेशनल प्रोसेस को हासिल करने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए जो है वो क्या करता है कि जो है आपके मकासद का तयन करता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं या सेटलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो है आपको मुख्तलिफ चीज़ें दरकार होती हैं, उनका सारी अरेंजमेंट्स, ठीक है। जो आप नसाब को जो है तरतीब देते हैं, उनकी तदबीर करते हैं, उनकी सिलेक्शन है, टाइम टेबल्स है, ठीक है। उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें क्लासरूम है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है लाइब्रेरी का इस्तेमाल है, ठीक है। लाइब्रेरी से अगर किसी को बुक्स देनी है तो वो कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसी तरह जो है कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब का इस्तेमाल, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है आपने जो है वो एकेडमिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो आप इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है कॉमन एक्टिविटीज़, ठीक है। एक तो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आ गई है, दूसरी आगे आ गई है आपकी कॉमन एक्टिविटीज़, ठीक है, जिनको जगह टाइम जो है आपको हम नसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है, ठीक है। ये जो है वो आपके नसाब के साथ लिंक कर रही होती है, यानी जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तो आपका नसाब मुकम्मल नहीं होता है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपकी जो है मदरसे के अंदर आप कह सकते हैं खेल हो सकते हैं, वर्जिश हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है बज़्म अदब वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। आपकी मॉर्निंग असेंबली जो होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ कम्पटिशन होते हैं, ठीक है, स्पीच कम्पटिशन है, ठीक है, नाम है, तिलावत है, ठीक है, इस तरह के या मुख्तलिफ देश के ऊपर जो है कम्पटिशन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आप लोग एक्टिविटीज़ के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो स्काउटिंग वगैरह है, ठीक है, स्कूल की मैगजीन वगैरह है, या जो है आपने जो है हेल्थ से रिलेटेड इब्तदाई की इमदाद जो होती है, ठीक है, उसके बारे में ट्रेनिंग देना होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है आपकी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि इदारे के अंदर जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे जो स्टाफ है उनको उनके लिए गाइडेंस करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई उनको मसला पेश आ रहा होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको जो है वो जज करे, उसको देखे कि कौन से स्टाफ को, कौन से मेम्बर को या कौन से बच्चे को जो है कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर साथ से आप किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो समझ आती है तो वो साथ ही साथ जो है उसकी काउंसलिंग करता है कि ताकि वो जो है उसको मज़ीद नुकसान जो है ना हो, ठीक है। इन नुकसान से बचाने के लिए उसकी काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो एक इदारे के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो वो इंटरनल रिलेशनशिप को भी देख रहा होता है, ठीक है। यानी वहाँ में जो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसने जो है वो तमाम चीज़ों को वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो उसने इंटरनल लेवल पे या एक्सटर्नल लेवल पे कि वहाँ पे वो रब्ते का जरिया होता है, ठीक है। एक इदारे के अंदर जितने भी स्टाफ है उस स्टाफ के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो उस तक पहुँचती है। कोई अगर कोई किसी स्टेट में अगर कोई जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड, क्लासरूम से रिलेटेड या किसी फैसिलिटी से रिलेटेड कोई भी है तो वो उस तक पहुँचती है, ठीक है। तो वो स्टाफ के दरमियान और उसके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप का एक जरिया होता है। इसी तरह जो है वालिदैन के साथ, सोसाइटी के साथ जो है मुख्तलिफ लोगों का जो है वो उसके साथ लिंक होता है, वो उसके साथ जो है चीज़ें शेयर करते हैं। तो उसी के मुताबिक अगर कोई प्रॉब्लम बच्चों की है तो वो उन तक पहुँचती है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो उन तक पहुँचती है, उन चीज़ों को जो है वो हल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आज हमने इसको एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है कि मुख्तलिफ माहिरीन के नज़दीक मुख्तलिफ जो है जो इदारे हैं उनके नज़दीक जो है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं, कौन सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि इस इदारे के अंदर जो है वो कौन से काम हो रहे होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं ना कि एजुकेशन इदारे के अंदर होने वाली जितनी भी सरगर्मियाँ हैं तो कौन से सरगर्मियाँ होती हैं, ठीक है। तो उनमें से चीज़ें जो सरगर्मियाँ थी वो हमने डिस्कस की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।